Hello, David. Arib here. David, you have got most wickets in the power play with the new ball. So, what is the mantra behind your bowling that why you are going to too many successful deliveries? So, condition is not gonna discard you. You are not helping for conditions, but just bowling great length. So, swing and seam, it doesn't matter for you, or is it just the tricks in your box? I think you've answered it for me. No, look, I mean, you know, I always try and look to swing the ball and then run one as well. So to try and challenge both edges. And I think, you know, having played a lot of cricket and opened the bowling for a long time, I think my experience, I can feel those key moments where something's going to happen, and then either, you know, hold what I'm doing or change something as I need to. Hello, Tim. Arib here. Tim, this is your first time in the HBL PSL, and you are not coming here in Pakistan before. So tell us about the conditions when you were batting, and what was the situation in the camp? There is some illness out there, we heard. Yeah, obviously a bit different from back home in New Zealand, the wickets. But yeah, obviously been lucky enough to play around the world in India and the CPL as well, which have similar conditions. But yeah, it's always takes a little bit of time to adjust to the wickets. And you know, with two games in now for myself, so now have a good understanding of the wickets, and hopefully going forward I can put a big score on the board. And yeah, obviously I think we've lost a couple of our players with illness, but you know, that's part of life as well, where some people get sick. But yeah, it doesn't matter who the starting 11 is. Everyone's capable of doing the job, and everyone's backed in the squad to perform. Hello, Louis. Arib here. Louis, before coming to the HBL PSL, what did you heard about the league in terms of quality and from other players? Tell us something about that, because you are coming into the PSL first time. Yes, it's my first time, and there's a very good man and great coach that I played under, Mickey Arthur, who coached Pakistan, and has told me all about this league. So ever since then, I've kept a close eye. And you know, when I got here, and you know, just facing some of the net bowlers and seeing what we've got in our squad and the guys have in the other squads, is incredible to see the talent coming through in Pakistan. So yeah, it's been an unbelievable experience. It's definitely a league that I rate really highly, you know, and now I get to experience it for myself. So it's really exciting to be a part of. Darren, tell me, when you were in the West Indies team, so you said in the death over we always plan to hit sixes number wise. So in the Peshawar Zalmi team, did you have the same plans of the death overs, where you think that if we hit 5 6s then we will go away? So tell us something about that same plan which you apply in the West Indies. Are you applying the same plan in the Peshawar Zalmi as well? Well, I mean, every team will want to hit sixes in the last 5 overs. You know, it gives you a good finish when you go into the halfway or trying to win a game. But credit must go to Moulton today. The way Chris Jordan, David Wheely, the way they were nailing those Yorkers, it proved quite difficult for our guys to hit sixes. So, I mean, it's important that it's not every day you will get 50, 55 runs in the last 6. So when you have a good start like we had today, it was more important to capitalize between overs number 7 to 10 or even 7 to 15 and get that extra 20 runs during that period, knowing that the opposition have some really skillful bowlers in the back end that could make the job difficult for us. And I didn't think today we read that quite well. Hi Manas, this is Arif from Arif Cricket World. Manas, you have not performed well in ILT20, but you have got 2 back-to-back good knocks. So what is the confidence now in you? Tell us about your confidence, and what is the main special thing which you did so getting in form? Man, you guys are hard on me, eh? This guy's giving me trouble about getting out the last game. You tell him, bring him back history, and man. No, I'm joking. Yeah, obviously ILT20 wasn't great for me personally and as a team. And yeah, I think when you're not scoring runs, you overthink things a lot. It's a game of cricket. Things happen. Sometimes you play on, you know, average wickets and you get out caught on the boundary. You've hit a good shot, but you get caught. Get a
dodgy LBW decision that you should have gone upstairs for and you didn't, or so I was training well, hitting the ball well in ILT20. Unfortunately, wasn't really getting the results, and then caught up with Walshy, who's my mental skills trainer. He's working for Scotland Rugby at the moment, and we just had a little discussion about where I'm at mentally in terms of my cricket, and I told him I wasn't really enjoying it as much as I was, because you obviously put pressure on yourself to perform, and when you're not performing, you can get quite negative and down on your mindset. So yeah, just a flick of the switch there. Gave me a couple of techniques to try and get more positive. I've been working on that even in everyday, just so that it becomes a habit that when I'm out on the field, I'm not thinking about that, it just happens automatically. So yeah, it's obviously really nice to get those 2 back-to-back scores, and hopefully now I've got some confidence that we can carry on. Hello Ravi. Ravi, you have got in your squad Arfat Minhas. He's a youngster, but he's not been given a chance yet. And Nawaz is playing consistently, and he's got just 2 wickets and he bowled 14 overs. And before today's match, he just scored 55 runs on 50 balls. So what is your makeup about that? Why you guys have not given a chance to a youngster? Instead, Nawaz is not performing well for you guys. Because it's never the right thing to just jump to someone who's built credit in the bank. Nawaz has been playing T20 cricket for many years, playing PSL from the day it started. And he's built his credit in the bank. Someone like him, who's played international cricket, you've got to give them a run. You can't just drop them after 4 or 5 games. They've got to have a long run. They deserve to have a long run when they've played that much cricket. And law of averages say that people at that level, international cricketers, they come good at some stage, and you've got to back them long enough to give them a chance to get to that stage. अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला अरीब हियर। अब्दुल्ला, आपकी टीम लाहौर कलंदर का पिछला सीज़न में आप लोग विनर रहे। आपने मिडिल ओवर जो थे उसमें 47 विकेट ली थी, इस बार सिर्फ 11 हैं। तो बीइंग अ प्लेयर आपको भी ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, 3 चांस आपको मिले सिर्फ, और आज आपने अच्छी बैटिंग। तो क्या समझते हैं कि क्या मिस्टेक्स ऐसी हो रही हैं जो मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिल रही आप लोगों को? ये वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं बताइएगा राशिद वाला, वो तो जाहिर सी बात है, सबको ही पता है कि वो एक मैच विनर है। उसके अलावा क्या ऐसा मामला रहा कि सिर्फ 11-47 से इतना बड़ा फ़र्क आ गया? जी बिल्कुल, राशिद भाई का एक बिग डिफरेंस है, क्योंकि जैसे वो खेलते आ रहे हैं उससे हमारा कम्बिनेशन काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। बट ये एक्सक्यूज़ कोई नहीं होता, आपको एज अ टीम अच्छा खेलना होता है। लेकिन ये है कि उस स्टेज पे हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन होपफुली कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग मैच है और उसके बाद जो नेक्स्ट PSL है उसके लिए अच्छा प्रिपेयर्ड हो। अस्सलाम वालेकुम अबरार, इतना कंसिस्टेंट चांस पहली मरतबा आपको PSL में जैसे मिला है, तो आपने क्या टारगेट बनाया है इस दफ़ा PSL में? कोई ऐसा बैट्समैन हो जिसे टारगेट बनाया हो, या कुछ विकेटों की तादाद हो जिसे टारगेट बनाया हो, ताकि जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी अराउंड द कॉर्नर है? तो इसके लिए आपने बहसियत खुद जहन में कुछ सोचा है? हाँ, सबसे पहला मेरा टारगेट ये है कि मैं नए बॉल से भी आउट करके दूं, और फिर मैं, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे नया बॉल मिले तो मैं नए बॉल से भी आउट करके दूं, और देन फिर मैं जो है ना बीच में भी आके अपनी टीम को अपनी बॉलिंग से जितवा सकूं। कोशिश मेरी ये है कि नया बॉल भी करूं और पुराना बॉल भी करूं। Hello Ravi. Hello. Tell me about the combination of Quetta Gladiators, because you have guys too many times of fielding first throw. Is that you think that your strength is your bowling and batting is disappointing you guys too many times? So what is wrong with your batting lineup? I don't think there's anything wrong with it. I just think we've just been a bit inconsistent. Some games we've been brilliant, and some games we haven't been. We've certainly not probably been at our best in the last 5-6 games, but we've managed to find ways of winning games of cricket and getting over the line. So that's been nice for the changing room, nice for the franchise, obviously, to be in this position, to be qualified. The group stages are gone, and we just move forward. समीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। समीन भाई, ये जो आपकी लाहौर कलंदर की टीम में इस दफ़ा कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया, इसमें आप लोगों ने अब्दुल्ला शफीक जो पिछले सीज़न में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए, इस बार उनको उतने चांसेस नहीं मिले, और जो है कामरान गुलाम को भी। तो आप क्या समझते हैं कि कॉम्बिनेशन जो था वो आपका राइट नहीं हो सका, या कोई और वजह थी? और दूसरी, कल मैंने अब्दुल्ला से भी ये बात पूछी थी कि आपने पिछले सीज़न में जो है वो 47 विकेटें ली थी 15 ओवर से 7 ओवर्स के बीच का जो पीरियड होता है,
बट इस बार सिर्फ 11 विकेटें हैं, तो वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सके थे। तो काइंडली आप ज़रा इस पर बताइएगा कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है। टीम के मिडिल ओवर्स की विकेट्स की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल आपने पूछे, एक तो आपने अब्दुल्ला शफीक का पूछा और एक आपने मिडिल ओवर्स की जो एक उसका पूछा। पहला तो आपका जवाब ये है कि अब्दुल्ला को हमने शुरू में ट्राई किया था कि नंबर 4 पोजीशन के ऊपर हम समझते थे कि उनको हम ट्राई करेंगे, तो जिस तरह की उनकी बैटिंग है और जितने अच्छे वो बैट्समैन हैं, मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल किया। ऊपर रासी और जो हमारे साहबजादा फरहान हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए उनकी जगह एज सच उधर नहीं बन रही थी। जैसे ही रासी गए तो हमने अब्दुल्ला को चांस दिया। अब्दुल्ला हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान इवन विद द वाइट बॉल। ऑल्दो के वाइट बॉल में उनको चांसेस उस तरह नहीं मिलते, लेकिन लाहौर कलंदर ही वो टीम है जिसने अब्दुल्ला को चांसेस दिए और अब्दुल्ला पे फेथ हमारा बहुत ज़्यादा है। सम टाइम कम्बिनेशन की वजह से आप नहीं खिला पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिस जगह पे वो खेलते हैं या जिस जगह पे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है वहाँ पे भी जो लड़के थे वो परफॉर्म कर रहे थे, तो आप उनके साथ भी ज़्यादती नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने पूछी मिडल ऑर्डर ओवर्स की। मिडल में जो ओवर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे डेविड वीज़ा थे और राशिद खान थे जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, या हारिस रऊफ थे। ये 3 वो ऐसे बॉलर हैं जो करते, जिनमें से ऑलमोस्ट तीनों ही सर्टन, राशिद तो पूरे टूर्नामेंट के लिए और राशिद जो हारिस हैं वो आखिरी 6 मैचों के लिए और डेविड जो हैं वो प्रॉब्ली 6 से 7 मैचों के लिए अनफिट थे, जिसकी वजह से ये हमारे मिडल ओवर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टैट्स को देखें, जो कि हम देखते रहते हैं, लाहौर कलंदर ने अगर बाकी टीमों से कंपेयर करें तो मिडल ऑर्डर में वी आर नॉट द वर्स्ट वन। हमने फिर भी कहीं ना कहीं बेहतरी की है। इवन लास्ट मैच में भी अगर आप देखें तो हमारा जो मिडल का ओवर था उसमें 6 पॉइंट समथिंग की हमारी स्कोरिंग रेट्स थे, जो कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच बहुत अच्छे थे। तो लेकिन आपकी पॉइंट ठीक है, मिडल ओवर में अगर हमारे पास बेहतर रिसोर्सेज हों इससे भी ज़्यादा, तो इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। शादाब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप भी उन कप्तानों में आज शामिल हुए जो ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान हैं। तो ये बताइए कि आपने 15 विकेटें भी ली और 300 से ज़्यादा रन भी बनाए इस टूर्नामेंट में, और वेस्ट इंडीज़ में और यूएसए में वर्ल्ड कप है, वहाँ पे आपने CPL भी खेली है। तो पर्सनली एज अ बॉलर आप क्या समझते हैं कि वहाँ की कंडीशन आपको कितना सूट करेंगी? और बैटिंग के लिए अगर सभी, जाहिर सी बात है अपना अपना नंबर हर कोई बता देता है कि मैं इस नंबर पे ज़्यादा सूटेबल हूँ, तो शादाब खान कौन से नंबर पे पर्सनली सूट करता है उसको कि वो बैटिंग करे तो ज़्यादा कारगर साबित होगा? हाँ, देखिए जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं वो पहले स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। अब उन्होंने पिचेस चेंज की हैं, तो थोड़ा अब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप डे में खेल रहे हो नाइट पे, उस पे वो डिफरेंस आ जाता है। वो हर स्पिनर को मुझे लगता है सपोर्ट करते हैं, मेरे नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे सपोर्ट करती हैं, सब स्पिनर्स को। कुछ जो सिटीज़ हैं, जो कुछ आइलैंड हैं उनको वो सपोर्ट करती है। ट्रिनिडाद में स्पिन होता है, बारबाडोस और गियाना में। गियाना की पिचेस भी अब चेंज हो गई, लेकिन बाकी जो पिचेस हैं वो फ्लैट होती हैं, वो ऐसा लगता है कि वो होती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा फ्लैट होती हैं। और दूसरा आपका क्या सवाल था? सर, बैटिंग नंबर देखें पाकिस्तान टीम में देखें, मुझे लगता है कि मैं ऊपर के नंबर पे अच्छा खेल सकता हूँ, और ये सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ है। और लेकिन मेरा ये बिलीव है कि जिधर टीम को ज़रूरत होती है शायद उस नंबर पे मेरी जगह नहीं बनती, तो जिस नंबर पे मेरी जगह बनती है उसमें मैं जो भी है मैं अपना कोशिश करूं कि मैं उस जगह पे मैचेस जिताऊं टीम को। तो आप अगर पर्सनल पे जाएंगे तो सब कोई किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो उसके फेवरेट नंबर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका फेवरेट है तो वो टीम को भी वो हेल्प कर रहा हो। तो जिस नंबर पे भी टीम को ज़रूरत हो मुझे लगता है उस नंबर पे खेलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, जाहिद अरीब। जाहिद, ये बताइए कि आपने जिस तरह अपनी बॉलिंग पे डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, तो आप एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे जो है वो कराची किंग्स में आए और जिस तरह आपने परफॉर्म किया, तो क्या आपने कराची किंग्स के माहौल को किस तरह पाया आके एक नई फ्रेंचाइज में, जो उसका ज़रा बता दें। और ये भी बताइएगा कि आप किस तरह की बॉलिंग करना आपको ज़्यादा पसंद है, चाहे वो जैसे कुछ स्पिनर्स जो नई बॉल से बॉल करते हैं या कुछ मिडिल ओवर्स में आके करते हैं, आप प्रेफर किसको करते हैं? जी देखिए, बॉलिंग तो जहाँ पे भी मिलेगी एज ए बॉलर मुझे वहाँ बॉलिंग करनी है, चाहे वो नए बॉल पे देंगे या पुराने बॉल पे। तो मेरी कोशिश यही होती है जहाँ भी आऊँ जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक बॉलिंग करूँ, और जहाँ पे विकेट्स चाहिए होती हैं तो उस वक्त हम विकेट्स पे जाते हैं, अदरवाइज डॉट बॉल पे जाते हैं। हेलो उमैर, आप पिछले नेशनल T20 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं।
और कोटा ग्लैडिएटर के लिए भी आपने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, इससे पहले सीज़न में भी 50 किया था। तो ये बताइए कि क्या ऐसी गलती कोटा ग्लैडिएटर में पूरे सीज़न को अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो क्या ऐसी जो गलती थी कि आप टॉप 2 में भी ना फिनिश कर सके और इस दफ़ा एलिमिनेटर में आके बाहर हो गए, टॉप 2 में फिनिश करते तो एक चांस होता, तो क्या आप समझते हैं मेन मिस्टेक रही है? आई थिंक जिस तरह का हमने स्टार्ट किया था टूर्नामेंट का, वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया था। क्रिकेट का ये पार्ट होता है, ये वेव्स आते रहते हैं कि कभी आप बहुत अच्छा खेलते कभी आप नहीं खेलते। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि टीम का माहौल बहुत अच्छा हमारा था, और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हार रहे तो हम किस तरह अपनी टीम को रखा हुआ है और हमने किस तरह अपना इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। आई थिंक उस पर हम डटे रहे, और ये हार जीत तो आई थिंक गलती मिस्टेक होती रहती है, हर इंसान से होती है। तो आई थिंक माहौल और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, जिससे मैं एज अ प्लेयर मुझे बहुत विदाउट एनी प्रेशर मैं उधर जाके खेल रहा था, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। ये तो कमबैक, हम तो अभी तो काफ़ी सीज़न है, तो इंशाल्लाह कमबैक करेंगे हम। रहमान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो डेविड विली को आप लोगों ने ऊपर भेजा बैटिंग करने के लिए, उसके पीछे स्पेशल क्या प्लानिंग थी आपकी, और उसामा मीर को 10 ओवर के बाद बॉलिंग पे लेके आना, तो इन दोनों के लिए पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, ज़रा उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, विली को हमने इसलिए कि बॉल स्पिन हो रहा था, तो एक लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए थे, तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि जाके उनको उनकी जो है स्पिन को किल करेंगे और उनके अगेंस्ट रन्स बनाएंगे। उन्होंने एक शॉट में एक छक्का लगाया भी, और अनलकीली वो आउट हो गए। एक स्ट्रेटजी होती है, आप मैचेस में फ़ौरन जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, और सम टाइम वो आपके फेवर में चले जाते हैं, सम टाइम आपके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो हमारी स्ट्रेटजी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो बहुत अच्छी रही है।